Hello everyone, I hope you all are doing well. Let me start today's class with my brief introduction. A handful of people from the group or from my subscribers are well aware about my name. For your kind information, my name is Vinay and I am NTA UGC NET qualified, JK SET qualified. Besides, I am pursuing my PhD currently. And most of the subscribers which I have witnessed from last couple of days, they are from Jammu and Kashmir. I am also a resident of J&K and more particularly I hails from district Doda, alright. As I mentioned, I am pursuing PhD currently and the area of my research in general is African American literature and more particularly I am working on James Baldwin. As far as the genre of my thesis is concerned, it's non-fiction and more particularly essays, alright. So this was brief about my introduction. Guys, before dwelling deep into today's class, let me clear a couple of things. These aspects which I'm going to share with you are likewise that undoubtedly every aspirant is waiting for the syllabus to be uploaded on the site, but I guess 2 to 3 components which are going to be common, which were earlier mentioned in the syllabus, I mean the syllabus of 2016. And those components are the brief introduction of history of English literature from 14th century to T.S. Eliot. Apart from this, the major works are very common, the major movements are very common, the chronologies are very common, the current happenings in literature are very common, all right? So I think it's the sheer wastage of time to wait for the syllabus to be uploaded. Undoubtedly, that will be a framework, that will be a blueprint in our hand to sail through the journey. But I guess this is the right time to prepare for an examination that true in a unstressful environment, all right? Because when you are having deadlines, when you are having syllabus in your hand, automatically our mind jumps to different reasons, different frustrations, different anxieties, all right? So I think this is the right time. ये right time है preparation को start करने का. और most of the people who doesn't know that how to start, I have already uploaded couple of videos on the channel that how to start the preparation of literature, all right? So 2 वीडियोज़ मैंने वहाँ पे डाली हुई हैं जो बेसिक हैं. उसमें ये बात कहने की कोशिश मैंने करी है कि लिटरेचर क्या होता है और लिटरेचर को स्टडी कैसे किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. तो आप वहाँ जाके वीडियोस को देख सकते हैं. सो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले लेट मी पुट फोर्थ 2 और 3 क्वेश्चंस अपॉन यू जो बहुत एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है और कैंटरबरी टेल्स से हैं और 14th सेंचुरी को हम डील कर रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन गाइज आपसे ये है और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना उसका आंसर कि हु इज़ गैप टूथ लेडी. इट वाज अ क्वेश्चन asked in NTA UGC NET a number of times. Second is who visited taverns a lot. And third is whose sexuality was in ambiguity. तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ऑल राइट. देखें, दिस इज़ द वे हाउ प्रेपरेशन गोज ऑन. हम यहाँ पे अपनी इक्वेशंस बैलेंस करने नहीं आए कि मुझे उसका वीडियो नहीं देखना है, मुझे उसका वीडियो देखना है. यार कोई सर्टन रीजंस हो सकते हैं, ऑल राइट. शन द रीजंस एंड गो फॉर द प्रेपरेशन, ऑल राइट. तो आज की क्लास में 2 कैरेक्टर्स जो कैंटरबरी टेल्स से मैं पढ़ाना भूल गया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनको डील करेंगे सबसे पहले. सो फर्स्ट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर ऑफ द नन प्रोयरस, ऑल राइट. Nun Proyrus is a character from Canterbury Tales and Nun Proyrus is a major character and examination oriented character, guys. So Nun Priest comes under the category of the characters female, alright, she is a female. और इसके अलावा सेकंड नन एंड वाइपर बाथ, तो 3 कैरेक्टर्स ऐसे हैं कैंटरबरी टेल्स में जो फीमेल्स हैं. सो एज फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ नन प्रोयरस इज कंसर्न, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है. अभी रिसेंटली 2 साल पहले एक क्वेश्चन बना हुआ था कि किसकी टेल के अंदर, आई मीन हुज टेल डील्स विद द पोर्ट्रेल ऑफ
पोर्ट्रेल ऑफ जूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोर्ट्रेल ऑफ जूज के साथ जो टेल डील करती है, इट्स द टेल ऑफ नन प्रोयरस। एंड व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नन प्रोयरस? इट वाज मैडम एग्लिंटीन। ऑलराइट, Madam Eglantine or Eglantine, whatever suits you, you are supposed to say that only. Madam Eglantine जो है इनका real name है, and you know, she was very fashioned. In a way, I can say she was a dandy kind of female, and she was very skilled as far as French language was concerned. All right, and at the same time, she was having a nasal voice. All right, and she was very skilled as far as टेबल मैनर्स आर कंसर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड फोर्थ फीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नन प्रोयरस इज शी लव्स एनिमल्स। ऑल राइट, शी लव्स एनिमल्स। हर नेचर वॉज सो फ्रेजाइल एंड सो इनोसेंट दैट इफ अगर किसी भी छोटे से एनिमल को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो शी got very emotional, all right, वो इमोशनल हो जाती थी। तो in a way you can say that she loves animal in special, all right। नेक्स्ट फीचर क्या था कि उन्होंने एक ब्राउश पहना था और उस ब्राउश पे एक लैटिन स्टेटमेंट जो थी दैट वाज मेंशन्ड, ऑल राइट। और लैटिन स्टेटमेंट क्या थी गाइज? लैटिन स्टेटमेंट वाज लाइक वाइज एमोर विंसेट ओमनिया, एमोर विंसेट ओमनिया। एमोर विंसेट ओमनिया जो है इट्स अ स्टेटमेंट इन लैटिन, ऑल राइट गाइज। देखें, लैंग्वेज को याद रखना है कि वो लैटिन में थी, फ्रेंच में थी या इंग्लिश में। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है गाइज वो एग्जाम में पूछा गया है। सो ऑमर विंसेट ओमनिया मीन्स लव कंकर्स ऑल, love conquers all right, this is the English translation of the statement written on the brooch of nun proyeress, amor vincit omnia, all right। Next important feature in context of nun proyeress tale is that her tale deals with a miracle of virgin, her tale deals with a miracle of virgin, all right। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है गाइज। आई होप यू गॉट द कैरेक्टर ऑफ नन प्रोयरस। सेकंड कैरेक्टर जो मैं आपसे बात करना भूल गया था, दैट कैरेक्टर इज द कैरेक्टर ऑफ क्लर्क, ऑल राइट, द टेल ऑफ क्लर्क, इन अ वे यू कैन से द टेल ऑफ क्लर्क। यू नो, अब यहाँ पे क्लर्क लिखा है तो इसका मतलब ये क्लर्क नहीं था। बेसिकली ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट at University of Oxford, all right, and he was studying there the logics, he was studying a subject which was associated with logic, all right। And very important, his tale deals with a tale of patient ग्रिसेल्डा, ऑलराइट। पेशेंट ग्रिसेल्डा की टेल को इसने नैरेट करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखेंगे, ऑलराइट। ही वॉज वेरी शैबी इन लुक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही वॉज वेरी शैबी इन लुक्स एंड ही वॉज राइडिंग अ हॉर्स दैट वॉज वेरी स्किनी एंड वीक, ऑलराइट। और क्लर्क जो था ही यूजुअली बोरोज money from his friends, but the best thing on the part of clerk was that he used to spend that money to buy the books, all right। तो कुछ important features हैं, and he is very studious kind of person, he is a studious kind of person, all right। और एक important statement है guys जो clerk के character से पूछी गई है, that is he would gladly teach and gladly learn, all right। statement क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, हु ग्लैडली लव्स टू टीच एंड लर्न, ऑलराइट, इट वाज द क्लर्क, ऑलराइट। सो गाइज ये 2-3 कैरेक्टर्स जो थे जो मेरे को पढ़ाना भूल गए थे, और आज मैंने आपको इन कैरेक्टर्स से एक्वेंटेंस करवाई,
जो भी डिटेल मैंने इन कैरेक्टर्स को लेके आपसे बताई, दैट डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट डिटेल इज़ एट द सेम टाइम एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिटेल. ऑल राइट, अब आगे हम चलते हैं. जैसे कि मैंने आपसे पहले बात करी थी कि जोफ्री चौसर का जो करियर है दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 headings. All right, first heading was French career. Second was Italian. All right, Italian career. And third was English career. All right. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इंग्लिश करियर से हमारा कैंटरबरी टेल्स है वो हमने डील कर लिया. और आज की क्लास में हम जो अपना सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट कंपोनेंट फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर. सो क्वेश्चन स्टार्टिंग में बना हुआ है कि फ्रेंच करियर में जोफ्री चौसर ने कौन कौन से वर्क्स लिखे थे. तो सबसे पहले वर्क्स की बात करें. द फर्स्ट वर्क विच Geoffrey Chaucer has written as far as the French career is concerned, that is Book of Duchess. Very important. Book of Duchess. Second one is Roman de la Rose. Third one is a long poem ABC. So these were the major works written by Geoffrey Chaucer in फ्रेंच करियर. ऑल राइट, तो सबसे पहले हम डचेस ऑफ बुक ऑफ डचेस की बात करेंगे. ऑल राइट, एंड बुक ऑफ डचेस से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिटेल है और जो एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो डचेस थी, शी वॉज द डचेस ऑफ विच रीजन और विच कंट्री. सो शी वॉज द डचेस ऑफ लैंकास्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. She was the Duchess of Lancaster. And second most important fact associated with Book of Duchess is it's a eulogy. It's a eulogy and elegy at the same time. All right. And eulogy और elegy का मतलब क्या होता है? Elegy क्या होती है कि it's a commemoration, it's a mourning song, है ना? It's a death song. And eulogy means praise after the death. So क्वेश्चन बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वर्क कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बोथ यूलॉजी एंड एलेजी. ऑल राइट, सो द बुक ऑफ डचेस इज अ यूलॉजी एंड एलेजी एट द सेम टाइम एंड it deals with the death of the Duchess of Lancaster. Very very important. All right, और second important third or fourth important detail associated with this work is that Godfrey White. Godfrey White is a character mentioned in Book of Duchess, and she was attendant of Book of Duchess. All right, and she narrates a story, and the name of that story or the story deals with Ceyx and Alicin. Cyex and Ceyx and Alcyone. Alcyone. Ceyx एंड एल्सियोन की स्टोरी जो है वो बुक ऑफ डचेस में नरेट करी गई है. तो गाइज ये आपको याद रखना है, ये एलिजी है और यूलॉजी भी है. इट वाज एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ऑफ लैंकास्टर. ऑल राइट, second work which comes under the edges or which comes under the banner, the heading French career is a Roman de la Rose. Very very important. Roman de la Rose. So सबसे पहले तो क्वेश्चन गाइज ये बनेगा कि रोमन de la Rose जो टाइटल है वो किस लैंग्वेज में है. सो इट्स इन फ्रेंच और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन इज Remount or Amount of the Roses or Amount of the Roses. All right. अब क्वेश्चन गाइस एग्जाम में ये बना हुआ है कि रोमन de la Rose को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो किसने किया था? डी लॉरिस एंड डी म्यूंग ने. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विलियम डी लॉरिस एंड डी म्यूंग ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था. ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ध्यान में रखेंगे. ओरिजिनली
it was written in French, that too in old French. और ट्रांसलेट करा था इंग्लिश में रोमन डिलोरिस एंड डीम्यूंग ने, और इंग्लिश टाइटल जो है दैट इज रिमाउंट ऑफ द रोज. नेक्स्ट इज अ लॉन्ग पोम, अ लॉन्ग पोम ABC. अ लॉन्ग पोम ABC का मतलब क्या है? क्वेश्चन बन सकता है गाइस, क्योंकि टाइटल ट्रिकी है. ABC का मतलब क्या है कि इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रेंच करियर ऑफ जोफ्री चौसर. अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट इटालियन करियर. ऑल राइट, इटालियन करियर. तो इटालियन करियर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है, जो टेक्स्ट है जो चौसर ने लिखा था, दैट वाज द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और इट इज ऑल्टरनेटिवली सबटाइटल्ड एज द असेंबली ऑफ फाउल्स. द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स का योनर गाइज एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट वाज द योनर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. इट कम्स अंडर द योनर बीस्ट फेबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप सब जानते हैं कि बीस्ट फेबल क्या है, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं. बीस्ट फेबल एक ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर एनिमल्स एज अ कैरेक्टर प्ले करते हैं. ऑल राइट, सो पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के अलावा बीस्ट फेबल जैसे कौन सा है, जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है द एनिमल फॉर्म, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द बैनर बीस्ट फेबल. एंड ड्राइडन के एक वर्क जो मुझे अभी याद आ रहा है, दैट इज द हाइंड एंड द पैंथर, द हाइंड एंड द पैंथर. ऑल राइट, तो ये दोनों वर्क्स बीस्ट फेबल में आते हैं. और ड्राइडन का जो हाइंड एंड पैंथर है गाइस, देखें मेरे को एक इन्फॉर्मेशन याद आ रही है कि इस वर्क से इन्फ्लुएंस होके 2 राइटर्स ने एक वर्क को ऑथर लिखा था, और वो NTA UGC नेट के अंदर क्वेश्चन था. वर्क का नाम सबसे पहले बता रहा हूँ, द सिटी माउस, द सिटी माउस एंड कंट्री माउस. ऑल राइट, द सिटी माउस एंड कंट्री माउस इज अ वर्क रिटन बाय मैथ्यू प्रॉयर, मैथ्यू प्रॉयर एंड मोन्टैग. मैथ्यू प्रॉयर और मोन्टैग ने हाइंड एंड पेंथर से इन्फ्लुएंस होकर द सिटी माउस एंड कंट्री माउस लिखा. ऑल राइट, मैं बात कर रहा था आपसे पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स की. इट कम्स अंडर द योनर बीस्ट फेबल. ऑल राइट, और पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स के अंदर क्या है कि स्टोरी में से क्वेश्चन बहुत कम रहेगा, फैक्ट से क्वेश्चन रहेगा. दिस इज द असेंबली ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन अ टेम्पल, और आउटसाइड अ टेम्पल विनस. क्वेश्चन बन सकता है. राइट, और इस गैदरिंग को कौन एड्रेस कर रहा है? सेंट वैलेंटाइन कर रहे हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट वैलेंटाइन इज गोइंग टू एड्रेस दिस गैदरिंग. और सेंट वैलेंटाइन के रिस्ट पे क्या है? ईगल है. और जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स यहाँ पे गैदर हुए हैं, दे आर असेंबल्ड है टू चूज देयर पार्टनर्स. ऑल राइट, सो इस तरीके से ये वहाँ पे एक असेंबली है. ऑल राइट, अब देखें पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो हैं, यहाँ से हमारा जो वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन डे का कॉन्सेप्ट आया हुआ है. बता रहा हूँ वैलेंटाइन डे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे क्लियर होता है, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है इट्स एन अलगोरिकल पीस ऑफ वर्क. सरफेस लेवल पे असेंबली ऑफ बर्ड्स है, बट अंडरनीथ में क्या है, यहाँ पे दिस वर्क सेलिब्रेट्स द मैरिज ऑफ रिचर्ड सेकंड एंड एन ऑफ बोहेमिया. ऑल राइट, और गाइज रिचर्ड सेकंड और एन ऑफ बोहेमिया जो हैं वो दोनों 14 ईयर्स ओल्ड है, और उनकी जो मैरिज है वो फैब में होती है, जो आने वाला फैब है. सो इन दिस वे 14 फैब को हम क्या करते हैं, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अब आने वाला है. ऑल राइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इस वर्क में से क्या है गाइज, इस वर्क के अंदर गॉडेस नेचर इज ऑल्सो देयर. गॉडेस नेचर को भी मेंशन किया है, और इस वर्क के अंदर 3 डक्स की बात करी है और 1 ईगल की बात करी है. अब जो 3 डक्स हैं इसके अंदर, दे आर रिप्रेजेंटिंग कोर्टली लॉ, I mean chivalric law, and eagle represents pragmatic approach to life. Very very important.
ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। नेक्स्ट जो है वर्क जो इटालियन करियर में आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम, ऑलराइट, द हाउस ऑफ फेम। हाउस ऑफ फेम का सबसे पहले तो एग्जाम में ये आपको मालूम होना चाहिए कि सोर्स क्या है। द सोर्स ऑफ हाउस ऑफ फेम इज डिवाइन कॉमेडी, एंड डिवाइन कॉमेडी इज अ वर्क रिटन बाय दांते, ऑलराइट। डिवाइन कॉमेडी की थोड़ी सी बात करते हैं। डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 100 कैंटोज, ऑलराइट, 99 प्योर कैंटोज प्लस 1 प्रोलॉग, है ना। बाद में इसके पार्ट्स की बात में करेंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखें कि हाउस ऑफ फेम जो है इट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइन कॉमेडी रिटन बाय दांते। और इस वर्क के अंदर क्या होता है, चौसर वॉज पिक्ड अप बाय एन ईगल, राइट, इन अ ड्रीम, है ना। ये सारी ड्रीम एलेगरीज हैं। और चौसर को जब ईगल जो है पिक करता है तो इस ईगल उसको कहाँ छोड़ता है, हाउस ऑफ फेम पे, ऑलराइट। तो ये सारी ड्रीम एलेगरीज हैं। इसका जो सोर्स है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि चौसर को ना यहाँ पे 3 तरीके के लोग मिलते हैं, और उन लोगों का डिस्क्रिप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक कैरेक्टर है जो यहाँ से पूछा गया है, लॉलियस। यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन था कि लॉलियस जो कैरेक्टर है वो किस वर्क के अंदर है। तो लॉलियस इज अ कैरेक्टर। अपार्ट फ्रॉम लॉलियस, इलोस is also a character which was mentioned in House of Fame by Geoffrey Chaucer, all right। नेक्स्ट जो है, इस वर्क को इमिटेट किया है किसने, बता रहा हूँ। Who imitated this work and has written a different work? There is a character from English Chaucerians and the name of that is Gavin Douglas. Gavin Douglas has imitated House of Fame, and Gavin Douglas is a English, Chaucerian, and he has written The Palace of Pleasure. Very very important. इंग्लिश चौसेरियंस और स्कॉटिश चौसेरियन की बात हम डिफरेंट वीडियो में करेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्क जो इटालियन करियर में जोफ्री चौसर ने लिखा, दैट इज ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा, ऑलराइट, ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा। ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा और क्रेसीड आप कुछ भी कह सकते हैं। सिमिलर टाइटल जो है शेक्सपियर ने भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिटेल है, ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा वाज डेडिकेटेड बाय चौसर टू जॉन गॉवर। और ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बना हुआ है कि जोफ्री चौसर जॉन गॉवर को ऑल्टरनेटिवली क्या कहते थे, तो मॉरल गॉवर कहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो ट्रॉइलस है इस वर्क के अंदर, ही फॉल्स इनटू लव विद क्रेसिडा and Cressida deceives Troilus, all right, and this work is based on Trojan War. Very very important. ये क्वेश्चन गाइस एग्जाम में बना हुआ है कि कौन सा वर्क जो है वो ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है, तो इट्स ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा, ऑल राइट। कैलचेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलचेज इज अ सूथसेयर इन दिस वर्क। तो कैलचेज का कैरेक्टर एग्जाम में पूछा है गाइस। ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा की बात मैंने करी। दिस वर्क इज एन एंटी फेमिनिस्टिक वर्क, ऑलराइट। और इस वर्क के अंदर ट्रॉइलस चौसर क्या कहते हैं कि विमेन्स वॉन्ट बी ट्रस्टेड, ऑलराइट। किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है और कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस ये जस्ट याद रखना है कि ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा की जो ब्रॉडली स्पीकिंग जो डिटेल्स हैं वो क्या है, ऑलराइट। अब मैंने आपसे पहले बात करी कि ये जो सारे वर्क्स हैं वो ड्रीम एलेगरीज हैं, वो ड्रीम को पेन डाउन किया गया है। अब इस वर्क को लिखने के बाद चौसर जो हैं वो लिखते हैं एक बहुत अच्छा वर्क, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को डील करने से पहले ट्रॉइलस एंड क्रेसिडा जो है बच्चों को,
दैट वाज रिटन इन राइम रॉयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज रिटन इन राइम रॉयल या राइम रॉयल, आप जो मर्जी वो कह सकते हो। और राइम रॉयल क्या है, राइम रॉयल क्या, इट्स अ राइटिंग टेक्निक, ऑल राइट। जैसे ब्लैंक वर्स है, हीरोइक कपलेट है, और इसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करा था दैट वाज मेड बाय जोफ्री चौसर। एंड इसका राइम स्कीम क्या है, ABABBCC। कंटिन्यू कर दें, ये राइम स्कीम जो है वो रटनी पड़ती है, ऑल राइट। भाई मैं तो रटता हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग। अब जैसे स्पेंसेरियन स्टांजा है, इंग्लिश स्टांजा है, चौसेरियन स्टांजा है, शेक्सपियरियन स्टांजा है, ऑल राइट, पैट्रियार्कन स्टांजा जिसको आप इटालियन स्टांजा भी कहते हैं। तो भाई मैं तो इनको मगअप करता हूँ, सीधी सी बात है। जब वहाँ पे पहुँचेंगे आपको भी लर्न करवा दूंगा मैं वो बातें, ऑल राइट। अच्छा, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एन इमेच्योर अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ जोफ्री चौसर टू मेक यूज ऑफ हीरोइक कपलेट, ऑल राइट। हीरोइक कपलेट में ये वर्क लिखा गया है गाइस, ये एक अटेम्प्ट थी। और हीरोइक कपलेट का सबसे सक्सेसफुल यूज अलेक्जेंडर पोप ने करा है, ड्राइडन ने भी करा है लेकिन अब बिट इमेच्योर, मिल्टन ने भी करा है, अब बिट इमेच्योर है, ऑल राइट। सो हु मेड द सक्सेसफुल यूज ऑफ हीरोइक कपलेट, इट वाज अलेक्जेंडर पोप, ऑल राइट, जिनका क्या है, द रेप ऑफ द लॉक है, द एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन है, डेनशार्ड है, एपिस्टल ऑन अर्बुथ नॉट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन को लिखने से पहले चौसर फेल्ट अ ड्रीम ऑफ गॉडेस एल्सिस्टस। और गॉडेस एल्सिस्टस क्या कहती चौसर को ड्रीम में कि ट्राइलस एंड क्रूसीडा में यू हैव क्रिटिसाइज द वुमेन, नाउ यू आर सपोज टू राइट अ वर्क विच विल प्रेज वुमेन। तो चौसर ने ये वर्क लिखा। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है गाइज, क्वेश्चन वाज लाइकवाइज, इस वर्क से एक लिटरेरी डिवाइस को इंक्वायर करा एग्जामिनर ने। तो लिटरेरी डिवाइस क्या था, पैलिनोड था। तो पैलिनोड इज अ लिटरेरी डिवाइस जिसमें राइटर जो है न्यू आइडिया पे जंप करता है विदाउट लिविंग द प्रीवियस। सो पैलिनोड इज अ वर्क, पैलिनोड इज अ लिटरेरी टर्म विच वाज यूज्ड बाय जोफ्री चौसर इन लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ऑल राइट। सो इसके अंदर उसने वुमेन की प्रेज करी है और कुछ वुमेन्स के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, वो नाम आपको लिखवा रहा हूँ, उनमें से मे बी क्वेश्चन बन सकता है। और हीरोइक कपलेट का अबिट एमेच्योर यूज यहाँ पे किया है। थिस्बी है, डीडो है, थिस्बी एंड डीडो के अलावा अच्छा जी क्लियोपेट्रा है, क्लियोपेट्रा के अलावा फिलोमिला है, अच्छा मीडिया है, मीडिया, नेक्स्ट इज लुक्रीस। गाइस ये भी बताएंगे रेप ऑफ द लुक्रीस किसने वर्क लिखा है, ऑल राइट, ओके। और टोटल बुक्स 9 है इसमें, 9 बुक्स आर टोटल। और ऑलमोस्ट जितने भी वर्क्स चौसर ने लिखे हैं इंक्लूडिंग कैंटरबरी टेल्स वो सारे अनफिनिश्ड हैं, ऑल राइट। ये वर्क हीरोइक कपलेट में है गाइज। हाउस ऑफ फेम जो है दैट इज इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में। और ट्राइलस एंड क्रूसीडा का सोर्स कहना मैं भूल गया आपको। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ ट्राइलस एंड क्रूसीडा रिटन बाय जोफ्री चौसर? इट वाज सेकंड फ्लैस्ट्रेटो, ऑल राइट, सेकंड फ्लैस्ट्रेटो। Second Flastretto is a work written by Boccaccio. तो गाइज ये सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस ऑफ फेम का जो सोर्स है दैट इज डिवाइन कॉमेडी, ऑल राइट। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ टुडेज क्लास। और ये सभी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड डिटेल्स हैं। गाइज एक बात की मुझे बहुत हैरानी होती है, अगर मेरी वीडियो को 200 या 200 प्लस या 100 लोग भी देख रहे हैं तो भाई कम से कम यार एक लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने से ना ही कोई आपका नुकसान है ना ही मेरा कोई फ़ायदा है, बट इट विल कीप यू एज वेल एज मी मोटिवेटेड बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल दिस जर्नी टुगेदर, ऑल राइट। सो थोड़ा सा ख्याल रखा करें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऑल राइट, ओके। तो आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं
तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप शेयर करें या फलाने को भेजें या इतने ग्रुप्स में डाल दें, नहीं। आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को सेटिस्फाई करें अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, इट्स एन इमेच्योर अटेम्प्ट टू मेक यू पीपल अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट, दो यू आर वेल मैच्योर एंड वेल रेड। सो गाइज, इसी नोट पे आज की क्लास को एंड करते हैं और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन।